ہم بات کر لیتے ہیں اوور دا ویکینڈ جو سچویشن رہی اور اس صورتحال کو جس طریقے سے پاکستان کی بہادر افواج نے کنٹرول کیا. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں ہونے والے حالیہ مہلک حملوں کی. ایک بار پھر پاکستان نے بھارت کے ملوث ہونے کا معاملہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کا اندیا دے دیا ہے. اور اس کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق حملے جو ہے وہ منظم تھے اور دہشت گردوں کے ساتھ مبینہ بیرونی روابط موجود ہیں، اور فوج کا یہ کہنا ہے کہ جوابی کارروائیوں میں 145 بھارتی سپانسر دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد پاکستان کا امن سیبوٹاژ کرنے کے در پہ ہیں. ایبسلیوٹلی. بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات میں بھارت شامل ہے. بھارت کے بلوچستان میں بزدلانہ وار پر سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 145 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. بلوچستان میں جاری شورش ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنتی دکھائی دے رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس موقع پر کہا کہ دہشت گرد پاک دھرتی کا 1 انچ بھی نہیں لے سکتے ہیں، اور کل اور پرسوں اس طرح کی جو سرجنسی کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے یہ پروو ہو گیا کہ بارہا پاکستان اپنی رٹ قائم رکھے گا اور کبھی بھی کسی بھی ایسے مذموم عزائم کو سر اٹھانے کی نہیں اجازت دے گا جو کہ پاکستان کے امن کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لاسٹ فوٹیج ہم نے آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھائی، اس میں جو سب سے تشویشناک بات تھی وہ یہ کہ ان سب کو ایک جگہ کارنر کر کے تو نیوٹرلائز کیا گیا، لیکن ان میں خاتون تھیں، ان کو وہ بھی شامل تھیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. وعلیکم السلام. بابر صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو نیوٹرلائزڈ 145 ٹیررسٹ، 145 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، وی ہیو ٹو یس، ہمیں اپنی بہادری کی، ہمیں شیر دل جوانوں کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنی انہوں نے منظم سازش کی. کب سے یہ چیز چل رہی ہوگی بابر صاحب؟ کتنے عرصے سے یہ ساری پلاننگ چل رہی ہوگی؟ جی بہت شکریہ. ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہندوستان کی سپانسرڈ شورش ہے، اس کو بھی بہت 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور اس کبھی کسی علاقے میں جا کے کوئی کارروائی کرتے ہیں، کبھی کسی علاقے میں جا کے کارروائی کرتے ہیں. ہٹ اینڈ رن کی ان کی بیسکلی ٹیکٹکس ہوتی ہے، جو کہ اس طرح کی جو انسرجنسیز ہوتی ہیں ان میں طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے. لیکن ابھی جو 2 دن پہلے جو کچھ ہوا، اس میں جو سیکیورٹی فورسز نے، فوج نے اور انٹیلیجنس اداروں نے جو کیا، یہ پہلے سے مختلف اس لیے ہے کہ اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے کم عرصے میں 2 سے 3 دن کے دوران اتنی بڑی تعداد میں ٹیررسٹ مارے گئے، اور یہ سارے کے سارے ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ان میں سے میکسیمم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارے گئے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ تبھی کیے جاتے ہیں جب آپ کو مصدقہ اطلاعات ہوتی ہیں کہ کسی علاقے میں، کسی ایریا میں اتنی بڑی تعداد میں ٹیررسٹ موجود ہیں کنسنٹریشن ایریاز میں. اور جو آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، اس میں بھی لگ رہا ہے صاف کہ انہوں نے یونیفارمز پہنی ہے BLA BRA کی. تو یہ تو ایک واقعی سیکیورٹی فورسز کی بہت بڑی کامیابی تو ڈیفینیٹلی ہے، اور اسی سے ان کو تکلیف بھی ہوئی ہے. یہ انہوں نے بہت پریشر فیل کیا، اور جو ریاکشن ان کی طرف سے 12 سے 13 جگہوں پہ آیا وہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان کی جو یہ انسرجنسی ہے، یا جو وہاں پر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے بنیادی طور پہ ہندوستان کی طرف سے، اس کی نیچر، اس کا طریقہ کا ڈیفرنٹ ہے. پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں اور کامیابیاں بھی حاصل کر رہے ہیں. اتنے مشکل حالات میں دنیا کی کوئی اور فوج یہ جنگ اتنی کامیابی سے نہیں لڑ سکتی، مگر یہ لوگ نام تو لیتے ہیں بلوچ نیشنلزم کا اور انسانی حقوق کا، اور بہت ساری محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں، بٹ اس دفعہ انہوں نے سیولینز کو بھی نشانہ بنایا ہے، انہوں نے عام لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو کہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کی اس طرح کارروائیوں میں عورتیں بھی شامل ہوئی ہیں جو کہ بلوچستان کی روایات کے بالکل برعکس ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں، یہ ڈیولپمنٹس، یہ واقعات اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے. یہ ثبوت ہے اس بات کا جو ہمارا بیانیہ ہے. ہندوستان ان لوگوں کو یوز کر رہے ہیں، کچھ نام نہاد کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی کچھ باہر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ملک کے اندر ہے کہ کبھی سیاست کے نام پہ، کبھی انسانی حقوق کے نام پہ، کبھی بلوچ محرومیوں کے نام کے اوپر ان چیزوں کو ہر وقت میڈیا میں ہائی لائٹ کر کے تو اوور آل جو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو وہاں پر یہ فوج کر رہی ہے. آپریشن کا ذکر تو ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپریشنز کرنے پڑتے ہیں. آپ اتنی بڑی فوج اس لیے مینٹین کرتے ہیں کہ جب ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو تو آپریشن کی آپشن جو ہے
وہ ہمیشہ یوز کی جاتی ہے، बाबर صرف साहब, हम और नहीं सबसे करते। बड़ी बात यह है कि आप अपने मुल्क के अमन को सैबोटाज नहीं होने देंगे, और जो लोग बात नहीं करना चाहते, हथियार उठाना चाहते हैं, आपको उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो फिक्रमंदी की बात है वो ये कि इनका कोयटा तक पहुंच जाना और फिर ऐसी जगहों पर हमला करना जो कि हम इससे पहले बहुत ही सिक्योर समझते हैं, और फिर ये कि इससे पहले ये दावा करना कि हम कोयटा तक रीच कर सकते हैं, गवादर हमारा कॉरिडोर है। सो ऑब्वियसली ये एक कंसर्न्स हैं जिनको मेरे ख्याल में एड्रेस होना ज़रूरी है। हाउ डिड दे मैनेज टू बी हियर एंड व्हाट आर वी डूइंग फर्दर कि ऐसे वाक़यात दोबारा, ठीक है हमें उनकी नीयत भी अंदाज़ा हो गया, कहाँ से फंडिंग आ रही है ये सब भी पता चल गया हमें, लेकिन वी डोंट वांट देम टू कम टू आवर मेजर सिटीज़ एंड डू ऑल दिस व्हाट दे डिड। जी, जहाँ तक कोयटा का ताल्लुक है और कुछ हमारी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल ग्वादर की बात ठीक की। ग्वादर या तुरबत या पंजगूर, केच, अवरान, खारान, ये सारे के सारे पसनी जो ये दूर दराज इलाके हैं और मेजर सिटीज़ भी हैं इनमें, और सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में भी आप में सबको पता होना चाहिए कि क्यों ये उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। वो तो इलाके ज़ाहिर है थोड़ा मेन कोयटा बलोचिस्तान से थोड़ा दूर है, बट कोयटा के इलाके में जो आपने बात की वहाँ पर कुछ एरियाज में आके इन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। कोयटा की जियोग्राफी और डेमोग्राफी से जो लोग वाकिफ़ हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। कोयटा में सरियाब का और ये सैटेलाइट टाउन का और जो हमारा बेसिकली जो एरियाज हैं ये ब्लोच डोमिनेटेड एरियाज हैं, और इनमें इंग्रेस एट टाइम्स होती है। बहुत सारे लोग इनके सबर्ब्स में रहते हैं और ये मस्तूंग वाली साइड से आके वहाँ पर सेटल भी हैं, उनमें ये लोग पाए जाते हैं। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट्स भी, अभी इन लोगों की स्क्रूटनी तो होती है और मजीद सख्त होनी चाहिए, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ जहाँ गैप्स हैं, जहाँ पर कुछ ग्रे एरियाज हैं, उनको एड्रेस करने की यकीनी तौर पे कोशिश की जा रही होगी भी, क्योंकि अब बलूचिस्तान का कैपिटल है कोयटा, वहाँ पर इस तरह का चांस नहीं ले सकते। वहाँ पर एक छोटी सी खबर भी दुनिया में हेडलाइन बनाती है और उसको एड्रेस होना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। बाबर साहब, दो सवाल है मेरे, कीप इट शॉर्ट। खेतरान साहब हैं, वो एमपी हैं बलूचिस्तान से, उनका आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द इंटरव्यूज़, उनका ये कहना है कि ये कोई आज़ादी की कोई तहरीक नहीं है, ये सिर्फ नाम नहाद ये तहरीक चला रहे हैं, और उसको उन्होंने बैक किया इस आर्ग्यूमेंट को कि अब ये लोग जाके बैंक लूटते हैं, ये जाके हॉस्पिटल्स को, डिस्पेंसरीज को आग लगाते हैं, और अगर कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट है माइनिंग का, मार्बल माइनिंग का, कोल माइनिंग का, उस प्रोजेक्ट को भत्ता जाता है कि इसका 10% 15% हमें दें, नहीं देते तो वहाँ के मज़दूर उठा लेते हैं, उन्हें कत्ल कर देते हैं, वही बलोच मज़दूर उन्हीं को कत्ल कर देते हैं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो अब बताया जा रहा है, बाज़ाब्ता ये शाया कर रहे हैं कि जी ऑपरेशन को इन्होंने नाम दिया है BLA वालों ने, उसका फेज़ 1, फेज़ 2 और इसको फ़िदाइन का नाम इन्होंने दिया है। सो दीज डॉट्स ऑब्वियसली, ये कोई बलोच कल्चर में फ़िदाइन का नाम तो है ही नहीं। सो ये जो कनेक्शंस हो रही हैं, सीधी सीधी कनेक्शंस हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कनेक्शन उसी तरफ जा रही हैं, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक कहा है कि ये बलोच कल्चर में नहीं है और ये कोई आज़ादी की नाम नहाद जंग नहीं है, ये दहशत गर्दी है। जब आपने ठीक कहा, जब बैंक लूटेंगे तो बैंकों वाले फिर वहाँ पर अपनी ब्रांचेज नहीं बनाएंगे, तो उसका नुकसान तो बलोचिस्तान के आम लोगों को होगा। जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करेंगे, वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर फिर वो नहीं आएंगे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे, तो ये अपने लोगों के साथ दुश्मनी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कोई, मैं भी इस चीज़ से इत्तफाक करता हूँ, ये दहशत गर्दी है, लोगों को खौफ व हरास पैदा करने के लिए है, और इन्होंने पैसे लेने हैं, लोगों को लूटना है, तो पैसे किधर यूज होते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, उनको टारगेट करते हैं, जहनों को नाम दिया हुआ बलोच हुकूक का और महरूमी का, और इस तरह के नाम दे के लोगों को ये वर्गला के इस तरफ लेके जाते हैं, और ये टोटल दहशत गर्दी है। और उनके खिलाफ होना भी यही चाहिए जो उनके खिलाफ हो रहा है, बल्कि ज़्यादा मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से इनके खिलाफ ये ऑपरेशन होने चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है ये होंगे, और इनका कला कमा इंशाल्लाह होगा। ये थोड़ी सी लॉन्ग ड्रॉन वॉर होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको ज़हन में रखना चाहिए। वहाँ के बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी भी बहादुरी अजमत को सलाम के, जिस तरीके से इनका मुकाबला कर रहे हैं, बिकॉज पूरी की पूरी सोसाइटी, चंद लोग इनके साथ होते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग हेडलाइन बनाते हैं, और बलूचिस्तान कोयटा में रहने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत, जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर करने से या गिवन करने से इनकार किया, और सरेंडर का तो लफ्ज़ ही नहीं है, किस चीज़ का सरेंडर या किस चीज़ का गिवन, इंशाल्लाह ये लोगों को यकीन रखना चाहिए। और आपकी मैं इस बात से इस हद तक यकीन इत्तफाक करूँगा कि जहाँ जहाँ हमारे थोड़े बहुत गैप्स हैं उनको कवर करने की ज़रूरत है। कोयटा तक तो इनको बिल्कुल, इनको चाहे जो भी हमें करना पड़े, जिस तरह के ऑपरेशन करने पड़े, मुझे पूरा यकीन है
होंगे, लोगों को थोड़ा सा मजीद साथ देना पड़ेगा। असल में बात सारी ये होती है कि लोग चूंकि हमारे हैं, हम उस तरह के ऑपरेशन कर नहीं सकते जिसमें कोलैटरल डैमेजेस हों। अदरवाइज 2 दिन की बात होती है जैसे नेटो आईएसएफ अफगानिस्तान में करते रहे, लेकिन हमने देखा होगा किस जगह पर आपने एयर यूज नहीं किया, आपने इस तरह के लॉन्ग रेंज डिस्ट्रक्टिव वेपन यूज नहीं किए। आप सिर्फ कोशिश करते हैं कि उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाए जो कि हार्ड कोर मिलिटेंट्स हैं, उन तक पहुंचने में टाइम लगता है, आबादी का इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन में छुपते हैं, लोकल लोगों को यूज करते हैं। बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट करें, खास करके जो आपने कोयटा की बात की। माई सेल्फ फ्रॉम कोयटा एंड आई नो कि बहुत सारे इलाके जहाँ पर ये मौजूद थे, वहाँ पर आपको आम तौर पर बलोच लोग ज़्यादा रहते हैं, मिलते हैं, और उनके बीच में ये अपने आप को कवर अप करके इस तरह के वाक़े, इस तरह के इंसिडेंट्स क्रिएट कर पाते हैं। अब इससे पहले हम सब ये जानते हैं कि भारत इसके पीछे फंडिंग कर रहा है। इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स फंडिंग के बगैर चल नहीं सकते, क्योंकि इनका जरिया क्या है, दे गेट दैट फंडिंग। हैव वी बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि ये किन अकाउंट्स के जरिए फंडिंग इन तक पहुंच रही है, ये कैसे ऑपरेट कर रही है? दुनिया भर इस तरह के अकाउंट्स को ब्लॉक कर पाते हैं, उनकी फंडिंग को रोक पाते हैं। सो हैव वी बीन एबल टू रीच देयर? किसी हद तक तो एक जहाँ तक फंडिंग आ रही है जो अकाउंट से आ रही है, जो टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज है, उनको हमने करने की जरूरत नहीं। हमें ये भी ज़हन रखना चाहिए कि अफगानिस्तान का जो कि बॉर्डर है, वहाँ पर अफगान तालिबान बिल्कुल इनको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि पार्टी बने हुए, तो वहाँ से जो लोग क्रॉस ओवर करके आते हैं वो पैबूसात भी लेके आते हैं। और एक तो वो है, दूसरा जैसे आपने देखा कि भी हालिया दिनों में मुख्तलिफ बलोचिस्तान के इलाकों में बैंक्स लूटने की कोशिश की है, वहाँ से भी फिर वहाँ पर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के वो लोग हैं उनको यरगमाल बना के ये पत्ते लेते हैं, तो वहाँ से भी इनकी एक फाइनेंसिंग का फंडिंग का मेन जरिया वो भी बना हुआ है। बट यहाँ की इनकी बैंक्स की ये ट्रांजेक्शन होती हैं और जो उस उम्र में आता है उसके खिलाफ मजीद ज़्यादा मौसर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। बात जब हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ये खुशी हुई है कि आपका ताल्लुक कोयटा से, आप तो फिर चूँकि डेमोग्राफी और जोग्राफी को जानती हैं, हम लोगों से लोगों को पता नहीं होता, और आप भी बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी मुश्किलात में वहाँ पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल इसको हमने सॉर्ट आउट करना है और इनको हमने इनका कला कमा करना है, और ये तमाम चीज़ें जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग है, चाहे लोकल कहीं पर छोटी मोटी छुपी हुई सपोर्ट है, या कहीं पर इनको गैप्स मिलते हैं, उन तमाम को कवर अप करके, क्योंकि ये एटलीस्ट हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेजर सिटी में इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस में, ये फार फ्लंग एरियाज में तो पहाड़ों में ट्रेचरस माउंटेन्स टेरेन में तो यार इनको छुपना घूमना फिरना आसान होता है। अगर इनको की लोकल सपोर्ट भी मिलती है तो उसको भी हमें रोकना होगा। थोड़ा सा कॉशियस हम जरूर रहते हैं, रीजंस आप जानती हैं क्या है, लेकिन अभी इट्स अ टाइम नाउ कि इन तमाम चीज़ों को अभी आई थिंक पसे पुश्त रख के तो अभी इन लोगों के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जो होगी भी। और ये भी हमें देखना चाहिए कि पिछले 3 दिनों में 145 अगर मारे गए तो इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले कभी नहीं मारे गए। ये भी, इससे भी इनको तकलीफ हुई है। और जो ऑपरेशंस का फेजेस का नाम देते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, ताकि लोगों को बताया जाए कि जब हम इतनी बड़ी फौज के खिलाफ फेजेस में ऑपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ हम जा रहे हैं, कुछ इनमें पकड़े भी गए हैं, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी हो रही है। इन तमाम अवामिल का अहाता करते हुए हमें अभी जहाँ की ज़रूरत है कुछ चेंज करने की अपनी स्ट्रेटजी वो भी करनी चाहिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के लोगों को बिलअमूम और बलूचिस्तान के लोगों को बिलखुसूस अभी ये जान लेना चाहिए कि ये लोग जो इनकी हमायत करते हैं, चाहे वो सियासत के नाम पे चाहे किसी भी नाम पे, मुल्क के अंदर है कि भी वो किसी सूरत भी मुल्क के खैर खा नहीं है, उनको भी आइसोलेट करने की ज़रूरत है, यकजा होके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।